لاہور میں رات گئے بارش نے گرمی کا زور توڑ دیا۔ صبح سویرے خوشگوار موسم، گرمی کے ستائش چہرے کھل اٹھے۔ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ دن بھر سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان۔ ہلکی ہلکی ہوائیں چلنے لگی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج 24 گھنٹے کے دوران مزید بارش برسنے کے امکانات ہیں۔ کفایت شعاری کمیٹی کا کاروباری اوقات میں توسیع کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت کفایت شعاری کمیٹی کا اجلاس۔ مارکیٹس اور شاپنگ مالز رات 9 بجے تک کھلے رہیں گے۔ ریسٹورانٹس اور کیفے رات 11 بجے تک کام کر سکیں گے۔ شادی ہالز کے لیے بندش کا وقت رات 10 بجے برقرار۔ میڈیکل سٹورز، ہسپتالوں، پیٹرول پمپ، آئی ٹی اور ٹیلی کام سیکٹر پابندی سے مستثنی قرار۔ صبح کو نئے اوقات کار پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت۔ پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں توسیع۔ کھلی فضا میں ڈرون اڑانے پر پابندی برقرار۔ محکمہ داخلہ نے ڈرون اڑانے پر عائد پابندی میں 30 روز کی توسیع کر دی۔ پنجاب اسمبلی کی کارروائی پیپر لیس بنانے کا فیصلہ۔ ایوان میں ارکان کے لیے جدید ٹیبلٹس نصب کر دیے گئے۔ 380 ٹیبلٹ یورپی یونین کے IP5 پروگرام کے تحت فراہم کیے گئے۔ سیکرٹری جنرل پنجاب اسمبلی چودھری عامر حبیب نے کہا کہ آئندہ اجلاس مکمل طور پر پیپر لیس ہوگا۔ جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے اسمبلی امور مزید مؤثر ہوں گے۔ مومنہ اقبال سے جھگڑے کے بعد ثاقب چدر کو مشکلات کا سامنا۔ رکن پنجاب اسمبلی ثاقب چدر کے اثاثوں کی تفصیلات کے لیے الیکشن کمیشن میں درخواست دائر۔ درخواست میاں آصف محمود ایڈوکیٹ نے جمع کرائی۔ MPA کے کاغذات نامزدگی اور اثاثوں کی تصدیق شدہ نقل فراہم کرنے کی استدعا۔ ثاقب چدر، اہلیہ اور دیگر زیر کفالت افراد کے تمام اثاثوں کی تفصیلات طلب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو ہوگا۔ چاروں وزرائے اعلیٰ اور وزرائے خزانہ کی شرکت متوقع۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اجلاس میں وفاقی اور صوبائی ترقیاتی پروگراموں کی منظوری کا امکان۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر PSDP میں 200 ارب روپے کا اضافہ بھی کیا جائے گا، جبکہ ترقیاتی بجٹ میں 200 ارب کے اضافے پر IMF کو بھی آگاہ کیا جائے گا۔ پنجاب میں مالی سال کا بجٹ پیش کرنے کی تاریخ پر اتفاق نہ ہو سکا۔ محکمہ خزانہ 12 جون بروز جمعہ کو بجٹ پیش کرنے کا خواہاں۔ محکمہ قانون نے بجٹ کی تاریخ تبدیل کرنے کی تجویز دی تھی۔ جمعہ کو سرکاری چھٹی کی وجہ سے بجٹ پیش نہ کیا جائے، بلکہ محکمہ قانون کی رائے۔ حکومت نے مالی مشکلات کے شکار تنخواہ دہ طبقے پر 605 ارب روپے کا انکم ٹیکس وصول کر لیا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی کڑی تنقید۔ کہا بجلی، پیٹرول اور روزمرہ اشیاء پر بڑھتے اخراجات نے عوام کی مشکلات بڑھا دی۔ تنخواہ دار طبقہ شدید معاشی دباؤ کا شکار ہے۔ حکومت ماہانہ 1,25,000 روپے ٹیکس انکم ختم کرے۔ انڈائریکٹ ٹیکسز مہنگائی میں اضافے کی بڑی وجہ بننے لگا۔ پاکستان میں انڈائریکٹ ٹیکسز کی شرح متعدد ممالک سے زیادہ نکلی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں انڈائریکٹ ٹیکسز کی شرح 60 سے 65% تک ہے۔ ماہرین کا ٹیکس نیٹ میں توسیع اور اصلاحات کی ضرورت پر زور۔ بجلی کے بھاری بلوں سے نجات کے لیے گورنر ہاؤس میں سولر منصوبے کا آغاز۔ گورنر ہاؤس میں 1200 کلو واٹ کے سولر انرجی یونٹ کی تنصیب جاری۔ گرین انرجی منصوبہ پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے شروع کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق سولر سسٹم تقریباً روزانہ 5000 یونٹ بجلی پیدا کرے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر عوامی صحت کے شعبے میں اہم اقدام۔ 6 کلینک آن ویلز ضروری ادویات سمیت گلگت بلتستان بھیج دیے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران زی نے موبائل کلینکس کی روانگی کا جائزہ لیا۔ کہا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں صحت کی سہولیات پنجاب سے نکل کر دیگر علاقوں تک پہنچ رہی ہیں۔
तारीख में पहली बार पंजाब के 2 प्रोजेक्ट अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर शॉर्ट लिस्ट। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए इंसानियत की खिदमत, पंजाब ने दुनिया को रास्ता दिखा दिया। पाकिस्तान WSIS कैटेगरी में 2 शॉर्ट लिस्ट प्रोजेक्ट के साथ दुनिया का वाहिद मुल्क बन गया। बच्चों और ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब का मॉडल आलमी सतह पर तस्लीम। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी मेरा प्यारा प्रोजेक्ट दुनिया के टॉप 5 में शामिल। पंजाब हुकूमत का वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन भी दुनिया के टॉप 20 प्रोजेक्ट में शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया। पंजाब में 1 लाख से ज़ायद बेघर खानदानों को छत मिल गई। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 208 अरब रुपए से ज़ायद के बिला सूद कर्ज फराहम कर दिए गए। सूबाई वज़ीर हाउसिंग को इजलास में ब्रीफिंग। बिलाल यासीन की प्रोग्राम के दायरा कार को मज़ीद वसअत देने की हदायत। अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की स्क्रूटनी शफाफ और मेरिट पर मुकम्मल की जाए। DG पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी नबील जावेद की ज़ेर सदारत इजलास। कहा, किसी भी हकदार को उसके हक से महरूम नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब का विजन ज़रूरी तरक्की और रोजगार के फ़रोग़ में संग मील साबित होगा। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास। डेंगू की अफजाइश वाले इज़ला पर खुसूसी तवज्जो देने का फैसला। हाई रिस्क के ज़िला में इंसदाद डेंगू कार्रवाइयों के फौरी शुरू करने का हुक्म। कहा कि फील्ड में जाली कारकर्दगी दिखाने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। डेंगू सीज़न में किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं होगी। यूनिवर्सिटी और कॉलेज तलबा को भी इंसदाद डेंगू मुहिम में शामिल करने का फैसला। पंजाब के बेशतर अजला में 5 जून तक बारिशों का इम्कान। PTM ने कहा, सूबे भर में आंधी बारिशों और सालाबारी का अलर्ट जारी। आसमानी बिजली से बचाव के लिए महफूज मकामा पर रहने की हदायत। DG PTM में उमर जावेद का कहना था, लाहौर, सियालकोट, नारवाल, फैसलाबाद, झंग और गिरतोनवा में बारिश का इम्कान है। 15 दिन में सिलाब से मुतल्लिका पेशगी इंतज़ामात किए जाएँ। सूबाई वज़ीर तामीर और मौसलात ने अल्टीमेटम दे दिया, जबकि शुएब अहमद भट्ट ने फील्ड फॉर्मेशन को मुतहरिक कर दिया। कहा कि अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाने और बरवक्त इक़दाम के लिए दूसरे महकमों से भरपूर राब्ता रखा जाए। लाहौर रेलवेज डिवीज़न इंतज़ामिया इंटरनेट सर्विस का बिल अदा न कर सकी, जबकि 1.5 लाख रुपए बिल अदा न करने पर ऑफिस में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल 15 दिन से, जबकि ज़राए के मुताबिक 4 माह से इंटरनेट बिल की अदम अदायगी पर कनेक्शन काटा गया। रेलवे दफातर में डिजिटल निज़ाम मफलूज, अफसरान और अमला ऑनलाइन सहूलियात से महरूम होकर रह गया। मिलावट माफिया पंजाब फूड अथॉरिटी के रिडार पर। सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट और मज़ाफ़ात में ऑपरेशन। 4 यूनिट को 3,40,000 के जुर्माने, जबकि 2 मन से ज़ायद नाकस मुरब्बा, अचार और खाम माल तल्फ कर दिया गया। CEO लेस्को इंजीनियर मोहम्मद रमज़ान भट्ट का ईस्टर्न सर्कल का दौरा। ज़ख्मी असिस्टेंट लाइनमैन ज़ुबैर से मुलाकात। CEO लेस्को ने ज़ख्मी लाइनमैन को गुलदस्ता पेश किया और हौसला अफजाई की। महमूद बूटी सब डिवीज़न में बोगस मीटर पकड़ने पर लेस्को एहलकार पर हमला किया गया। हमले में असिस्टेंट लाइनमैन ज़ुबैर की नाक की हड्डी टूट गई थी, जिससे CEO लेस्को ने कहा कि मुलाजमिन की हिफाजत और कानूनी हकूक़ का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बिजली चोरों, सरकारी एहलकारों पर हमला आवर अनासर से रायत नहीं होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने मोटरवे गैंग रेप केस का फैसला महफूज कर लिया। मुलजिम आबिद मली और शफकत बग्गा की अपीलों पर जस्टिस शहबाज अली रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दोनों मुजरमों को 20 मार्च 2021 को सजाए मौत सुनाई थी। दोनों मुजरमों ने 25 मार्च 2021 को फैसला चैलेंज किया था। लाहौर में मुबैना इज्तमाई ज़्यादती के बाद घरेलू मुलाजमा की हलाकत केस में दफ़ा 302 भी शामिल। तफ्तीश का दायरा मज़ीद वसी कर दिया गया। मालकान को दोबारा शामिल तफ्तीश करने का फैसला। नोटिफिकेशन जारी। मुकदमा जेंडर सेल से मुंतकिल करके इन्वेस्टिगेशन विंग के सुपुर्द।
जाली पीर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कान्हा पुलिस ने ह्यूमन इंटेलिजेंस से मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। मुलजिम ने चंद रोज कबल खातून को वरगला कर ज्यादती की थी। मुलजिम फारूक के खिलाफ मुकदमा दर्ज जेंडर सेल के हवाले। सतारा कॉलोनी फिरोजपुर रोड पर ताई की मुबैना गफलत से बच्चे की टांग टूट गई। वालिदैन बच्चे को खतना कराने लाए। मुबैना तौर पर अताई की गलत हरकत से हादसा पेश आया। बच्चे की टांग की हड्डी 2 जगह से टूट गई। बच्चे के जख्मी होने पर अहले खाना का एहतजाज। शहरियों का गैर मुस्तनद अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का मुतालबा। वैन ड्राइवर से बदतमीजी का मामला। सीटीओ लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शहराजी का फौरी एक्शन। ट्रैफिक कांस्टेबल मुअत्तल। सीटीओ लाहौर का कहना था इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में मजीद कार्रवाई होगी। शहरियों से हुस्न सलूक पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों में कमी न आ सकी। ट्रैफिक कवानीन की रोजाना औसतन 35,000 खिलाफ वर्जियाँ होने लगी। पंजाब में ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर 6 माह में 12.5 अरब रुपए से जायद के जुर्माने आयद। हेलमेट न पहनने पर सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियाँ। 4 अरब रुपए से जायद के चलान। गैर कानूनी नंबर प्लेट्स पर 2,43,000 चलान। 48 करोड़ रुपए से जायद जुर्माने किए गए। सख्त गर्मी में पीने का पानी न बैठने की जगह। सेशन कोर्ट में वकला और साइलिन परेशान। ईवान अदल समेत दीगर अदालतों के अहाता में पीने के लिए पानी का कोई इंतजाम नहीं। साइलिन के लिए बैठने के लिए भी बेंचेस नायाब हो गए। टाउन हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद। कमिश्नर लाहौर मरियम खान की खुसूसी शिरकत। कहा कि लोगों के मसाइल सुनने उन्हें हल करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आवाम के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए मुतल्लिका महकमों को अहकामात जारी किए गए। ये फेथ है कि इंशाल्लाह यहाँ पे उनके ग्रीवेंस रिड्रेस होंगे। तो हमारी अब ये ख्वाहिश और कोशिश होगी कि इसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट किया जाए। डीजी राजा मंसूर अहमद का पीएचए के ज़ेर इंतज़ाम दफातर को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करने का हुक्म। पीएचए की रोज़मर्रा खतो खताबत ई पास सिस्टम के जरिए की जाएगी। दूसरे मरहले में तमाम ज़िले दफातर भी सरकारी खतो खताबत बजरिया ई पास करेंगे। डिजिटलाइजेशन से दफ्तरी उमूर की रफ्तार में भी इजाफा होगा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 41 रन से हरा दिया। टॉप ऑर्डर की नाकामी टीम के गले पड़ के शादाब खान की मज़ाहमती इनिंग भी टीम के काम न आई। जबकि ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 232 रन का हदफ दिया। जॉश इंग्लिस और कैमरॉन ग्रीन की निसफ सेंचुरियां बनाई। शाहीन शाह अफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। हारिस रऊफ, इरफान मिन्हास और इब्रार अहमद की 2-2 विकेटें। जवाब में पाकिस्तानी टीम 190 रन पर हिम्मत हार गई। शादाब खान ने 71 रन की इनिंग खेली। लेवल 2 कोचिंग कोर्स का आगाज़ होगा। जबकि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जारी लेवल 2 कोचिंग कोर्स में 29 शुरका शरीक। इंटरनेशनल क्रिकेटर हुसैन तलत भी 6 रोज़ा लेवल 2 कोचिस कोर्स का हिस्सा। कोर्स में जदीद कोचिंग फ़िलॉसफी और जदीद बैटिंग तकनीकों की तरबियत दी जाएगी। मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और वसीम अहमद फाते रहे। दूसरे मैच में गौहर नफीस और सफ़ी सरवर कामयाब करार पाए। तीसरा मैच शुजात अली और मोहम्मद जुहेब ने अपने नाम किया। चौथे मैच में राना मकसूद और मुश्तबा चौधरी ने फतह समेटी। और यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के शोबा तारीख, फ़नून और सकाफती विरसा के ज़ेर एहतमाम BFA थीसिस नुमाइश का इनकाद। फारगुल तहसील तलबा के 100 से ज़ायद तख्लीकी और तहकीकी फ़न पारे पेश किए गए। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने मुख्तलिफ डिस्प्ले का मुआयना किया और तलबा की आला मयार के कामों को भी सराहा।